गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो अपना टॉपिक है वो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ए डिफरेंशियल इक्वेशन विच कंटेन वन और मोर पार्शियल डेरिवेटिव देन इट इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ टुडेज आवर टॉपिक इज फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पार्शियल. It is also called Lagrange's linear equation. Now del z by del x, the first order derivative, it is denoted by small p, and del z by del y, it is denoted by q. So what is Lagrange's linear differential equation? A partial differential equation is of first order if only first order partial derivative p and q are present in it. Clear? And it is linear if p and q are present in first degree. That is, no square, cube, etc. are involved. Hence, the Lagrange's linear partial differential equation of first order is given by Pp plus Qq equals to R, where capital P, capital Q and R are the function of x, y, z or constant. That is called the Lagrange's linear partial differential equation of first order. Now, for solving this equation, we have an auxiliary equation. The Lagrange's auxiliary equation is given by dx upon p, dy by q, dz by r. This is called auxiliary equation of Lagrange's partial differential equation. Now we have to solve this equation and find the two independent solution, and let these two independent solution are u and v. Then its general solution is given by f u comma v equals to 0, or we can write u equals to f v. Both way we can write the solution of partial differential equation, and u and v are the independent solutions of given auxiliary equation. We can understand by solving this example. Solve y square plus z square minus x square p minus 2xyq equals to minus 2zx. Now this is Lagrange's linear partial differential equation form because it is in the form pp plus qq equals to r. P and Q are present in first degree. Okay, clear? Now its auxiliary equation is given by dx by p equals to dy by q equals to dz by r, where the p, q and r are the p, capital P equals to y square plus z square minus x square, small p का कोफिशिएंट है. कैपिटल Q equals to minus 2xy, small q का कोफिशिएंट है, and r right hand side values minus 2zx. Now put the value p, q and r. This is our auxiliary equation of given partial differential equation. Now we have to find the two independent solutions. First solution we can easily find by using second and third combination. Now by using second and third, minus 2x से minus 2x cancel out हो जाएगा. That dy by y equals to dz by z. Easily integrable है. Integrating both side, log y equals to log z plus constant of integration log c1. Using the property of log, this is log a minus log b, log a upon b, log से log cancel out हो जाए, तो y upon z equals to c1. This is the value of u, y by z. Now first solution मिल गया हमको. Now for second solution we have to find the new combination. We can integrate the given equation. Now partial differential equation में इंटीग्रेशन तभी पॉसिबल है जब जिस भी फंक्शन या वैल्यू का इंटीग्रेशन कर रहे हो उसकी डेरिवेटिव उसके साथ कंटेन कर रही तो यहाँ अब डायरेक्टली कोई इंटीग्रेशन नहीं हो रहा, तो वी हैव टू अरेंज द कॉम्बिनेशन. देयरफॉर वी टेकिंग द मल्टीपल एक्स वाई जेड. जो भी ऑपरेशन आप न्यूमिनेटर में अप्लाई करोगे सेम ऑपरेशन आपको कहाँ यूज़ करना है, डिनोमिनेटर. तो जब dx को x से, dy को y से और dz को z से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये कॉम्बिनेशन बन रहा है एक्स वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू साथ में अपन ने ले लिया dz माइनस 2x जो गिवन था ऑलरेडी. ना उसे सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से सिंप्लीफाई करने के बाद आपका माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा और रिमेनिंग पार्ट बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. नाउ माइनस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा. वी कैन राइट दिस 2x dx प्लस वाई dy प्लस जेड dz अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू dz बाई जेड. नाउ दिस इज इजीली इंटीग्रेबल क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है 2x dx प्लस 2y dy प्लस 2z dz जो अवेलेबल है अपने पास. नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अगर इसको टी मानेंगे तो dt क्या आ जाएगा आपका 2x dx प्लस 2y dy प्लस 2z dz. तो dt बाई टी का इंटीग्रेशन आप क्या हो गया
log x square plus y square plus z square equals to log z plus constant of integration log b. सिंप्लीफाई कर लो, log a माइनस log b, log a अपॉन b, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन जेड इक्वल्स टू बी. लॉग से लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका सिंप्लीफाई आंसर हो जाएगा. दिस इज सेकंड इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन. कि दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी कोई भी कांस्टेंट उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करके वो एक दूसरे में इंटरचेंज नहीं हो, और तीनों ही वेरिएबल एक्स वाई जेड कंटेन करने चाहिए. हैंस द जनरल सॉल्यूशन इज एफ यू कॉमा वी इक्वल्स टू 0. यू और वी की वैल्यूज पुट कर दो. एफ वाई बाय जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय जेड इक्वल्स टू 0. दिस इज आवर जनरल सॉल्यूशन. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड. सॉल्व पी जेड माइनस क्यू जेड इक्वल्स टू जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर. इसे सिंप्लीफाई करना है. नाउ इट इज ऑल्सो लैग्रांज पार्शियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर पी एंड क्यू आर प्रेजेंट इन 1 डिग्री. Now its auxiliary equation is dx by p equals to dy by q equals to dz by r. कैपिटल P की वैल्यू है z, कैपिटल Q माइनस z, और r राइट हैंड साइड वैल्यू z स्क्वायर प्लस x प्लस वाई का होल स्क्वायर. नाउ इन दिस ऑक्सिलरी इक्वेशन द फर्स्ट टू वैल्यू इज डायरेक्टली इंटीग्रेबल. क्यों z से z कैंसिल आउट हो रहा है, एंड dx और dy डायरेक्टली इंटीग्रेशन हो सकते हैं. नाउ टेकिंग फर्स्ट टू कॉम्बिनेशन dx बाय z इक्वल्स टू dy अपॉन माइनस z. z से माइनस z कैंसिल आउट हो गया. नाउ बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड we have x minus y plus constant of integration c1. So we have the first independent solution is x plus y equals to c1. Now we have to find the second solution. Now for the second solution we use first and third combination because x plus y की वैल्यू अपने पास आ चुकी है, उसको अपन रिप्लेस कर सकते हैं c1 से. सॉरी, उस c1 को अपने कांस्टेंट a ही सपोज कर लिया है. ठीक है, तो x प्लस वाई की वैल्यू किससे रिप्लेस कर सकते हैं अपन, a से. नाउ dx बाय जेड इक्वल्स टू dz अपॉन जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई. फर्स्ट एंड थर्ड कॉम्बिनेशन यूज़ किया है. x प्लस वाई को रिप्लेस कर दो a से, तो वी हैव dx बाय जेड इक्वल्स टू dz अपॉन जेड स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. नाउ z को अगर लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो जेड स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को t मानेंगे, तो इन 2z dz क्या हो जाएगा, dt इजीली इंटीग्रेबल हो जाएगा, और dx आपका सेपरेट इंटीग्रेशन हो जाएगा. तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड dx का इंटीग्रेशन आपका x हो गया, और जेड dz अपॉन जेड स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 log जेड स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. जेड स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को t सपोज करके सॉल्व करना है, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन b/2. तो 2x माइनस लॉग जेड स्क्वायर प्लस एक्स a स्क्वायर, a की वैल्यू क्या होगी x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू b. दिस वाज सेकंड सॉल्यूशन. हैंस द जनरल सॉल्यूशन इज u इक्वल्स टू एफ फॉर्म ले ली. यहाँ पे u आपने इसे सपोज कर लिया 2x माइनस लॉग जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एफ वी. वी आपका जो फर्स्ट सॉल्यूशन था x प्लस वाई, एंड दिस इज आवर जनरल सॉल्यूशन. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड. सॉल्व पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल्स टू आर. सॉल्व जेड स्क्वायर माइनस 2y z माइनस वाई स्क्वायर पी प्लस एक्स वाई प्लस जेड एक्स इक्वल्स इंटू क्यू इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस जेड एक्स. अगेन दिस इज Lagrange's auxiliary equation. Lagrange's partial differential equation of first degree. Now its auxiliary equation is given by dx by p equals to dy by q equals to dz by r. Now अभी डायरेक्टली कोई भी पार्ट नहीं बन रहा है, इंटीग्रेशन नहीं पॉसिबल है. ठीक है, तो यहाँ अपन को कॉम्बिनेशन अरेंज करना पड़ेगा. कॉम्बिनेशन बनाने के लिए अपन ने फर्स्ट मल्टीपल किससे ले लिया, x y और z का मल्टीपल कर दिया इसको. फर्स्ट को x से, सेकंड को y से, और थर्ड को z से. जो ऑपरेशन अपन न्यूमरेटर में अप्लाई करें सेम ऑपरेशन कहाँ अप्लाई होगा, डिनोमिनेटर. ना अप्लाई करो x dx प्लस y dy प्लस z dz. ना इसे सिंप्लीफाई करोगे तो डिनोमिनेटर पार्ट क्या रहा, 0. ना इसे किसी भी पार्ट के साथ अगर इक्वल रूट लेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगी x dx प्लस y dy प्लस z dz इक्वल टू 0, जो डायरेक्टली इंटीग्रेशन है गेबल है. नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस जेड स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट a/2. तो अपना फर्स्ट सॉल्यूशन आपका आ गया 2 कैंसिल आउट हो जाने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू a. नाउ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप अपने अकॉर्डिंग दें, जो भी सॉल्यूशन प्रोसेस जिस फॉर्म में आएगा उसी के अकॉर्डिंग आपको कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सेलेक्ट करना है, इसलिए यहाँ पर a/2 सेलेक्ट किया है. क्लियर. तो आपका फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू a. नाउ अगेन सेकंड कॉम्बिनेशन भी अरेंज करना है. ना सेकंड कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने के लिए अपने लास्ट टू प्रोसीजर यूज़ कर लिया. लास्ट टू जो पार्ट है dy अपॉन एक्स वाई प्लस जेड एक्स इक्वल्स टू dz अपॉन एक्स वाई माइनस जेड एक्स, इनको इंक्लूड कर लिया. नाउ x कॉमन x कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों पार्ट से. नाउ इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो y माइनस जेड dy इक्वल्स टू वाई प्लस जेड dz.
ना उससे सिंप्लीफाई करेंगे तो वाई डी वाई डायरेक्ट इंटीग्रेबल है, माइनस जेड डी वाई यानी जेड और वाई का कॉम्बिनेशन है, यहाँ से अपन जेड वाई का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, वाई डी जेड, जो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस वाई डी जेड हो जाएगा, ये यू इंटू वी से डिफरेंशियल ऑफ वाई जेड बन जाएगा, माइनस जेड डी जेड इक्वल 0। नाउ तीनों पार्ट इंटीग्रेबल है, वाई के साथ डी वाई है, ये डिफरेंशियल ऑफ वाई जेड है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो सकता है, और जेड डी जेड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, वाई का इंटीग्रेशन आपका वाई स्क्वायर बाई 2 हो गया, ये डिफरेंशियल ऑफ वाई जेड का इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो गया, माइनस वाई जेड माइनस जेड का इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट बी बाई 2, तो आपकी एक वैल्यू आ गई वाई स्क्वायर माइनस 2y/z माइनस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू बी, हैंस द कंप्लीट और वी कैन से जनरल इंटीग्रल इज एफ यू कॉमा वी इक्वल्स टू 0, वैल्यू पुट कर दो यू और वी, ये आपका जनरल इंटीग्रल एफ यू कॉमा वी इक्वल्स टू 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व x प्लस 2z प्लस p इंटू पी प्लस 4zx माइनस वाई क्यू इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस वाई, तो अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी dx बाई पी इक्वल्स टू dy बाई क्यू इक्वल्स टू dz बाई आर, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ पी क्यू एंड आर। नाउ यहाँ भी आपको कॉम्बिनेशन अरेंज करना है। नाउ फर्स्ट टू एक्स जेड के साथ है 4zx माइनस वाई 2x स्क्वायर प्लस वाई, अगर फर्स्ट को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर आएगा, आपको क्या चाहिए 2x स्क्वायर चाहिए, तो फर्स्ट को 2x से मल्टीप्लाई कर दो 2x स्क्वायर प्लस 4xz, यहाँ 4xz है, इट मीन्स फर्स्ट एलिमिनेट करने के लिए फर्स्ट में से सेकंड वाला माइनस कर दो तो 2x dx माइनस dy, 2x dx माइनस dy, तो यहाँ से 4zx से माइनस 4zx कैंसिल आउट हो रहा है। नाउ 2x स्क्वायर को कैंसिल आउट करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस ही करना पड़ेगा, तो माइनस dz कर लिया, डिनोमिनेटर वाला पार्ट पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास बचा है 2x dx माइनस dy माइनस dz अपॉन 0। किसी भी एक के साथ अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा 2x dx माइनस dy माइनस dz इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ डायरेक्ट इंटीग्रेबल है, बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट एक्स स्क्वायर बाई 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस dy का इंटीग्रेशन y माइनस dz का इंटीग्रेशन z प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन a, दिस इज अवर फर्स्ट इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। नाउ अगेन टेक द मल्टीपल ऑफ y x और माइनस 2z, फर्स्ट को y से मल्टीप्लाई किया है, सेकेंड को z x से मल्टीप्लाई किया है, और थर्ड को माइनस 2z, क्यों, क्योंकि अगर इसको y से मल्टीप्लाई करते हो तो ये xy बन रहा है, उसको x से बन रहे हो ये xy बन रहा है, दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो y और x तो सेटिस्फाई कर रहे हैं। जब इसको y से मल्टीप्लाई किया है तो 4zy आ रहा है, 2zy आ रहा है, और जब इसको x से मल्टीप्लाई किया है तो 4zx स्क्वायर आ रहा है। इन दोनों को कैंसिल आउट करने के लिए इसमें किससे मल्टीप्लाई किया है, माइनस 2z से, तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। नाउ डिनोमिनेटर पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपका हो गया y dx प्लस एक्स डी वाई माइनस 2z dz इक्वल टू 0। वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई को u इंटू वी से लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई माइनस 2z dz इक्वल टू 0, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो गया, एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन b, हैंस द जनरल इंटीग्रल इज एफ यू कॉमा वी इक्वल टू 0, वैल्यूज पुट कर दो u और v की। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 5, एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड पी प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स क्यू इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई दे रखा है। अगेन दिस इज लैग्रांजेस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज गिवन बाय डी एक्स बाई पी इक्वल टू डी वाई बाई क्यू इक्वल टू डी जेड बाई आर, पी क्यू और आर की वैल्यू। ना अभी डायरेक्टली इंटीग्रेबल नहीं है, बट वी कैन ईजिली से अगर डी एक्स माइनस डी वाई करते तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फॉर्म आ जाएगा, और यहाँ से भी एक्स माइनस वाई कॉमन निकल सकता है। तो अपन डिफरेंस फर्स्ट लेते हैं डी एक्स माइनस डी वाई, और सेकेंड कॉम्बिनेशन लेते हैं डी वाई माइनस डी जेड। तो डी एक्स माइनस डी वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ से जेड कॉमन आ जाएगा तो एक्स माइनस वाई हो गया, डी वाई माइनस डी जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इन दोनों से अपना एक्स कॉमन आ जाएगा तो वाई माइनस जेड हो गया। दस से सिंप्लीफाई करोगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फैक्टर होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई कॉमन आ गया तो यहाँ से आ रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर के फैक्टर हो जाएंगे वाई माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड, वाई माइनस जेड कॉमन आ गया तो वाई प्लस जेड प्लस एक्स, दोनों एक्स प्लस वाई प्लस जेड कैंसिल आउट हो गए। नौ एक्स माइनस वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है डी एक्स माइनस डी वाई, और वाई माइनस जेड का डिफरेंशिएशन डी वाई माइनस डी जेड। ठीक है, तो दोनों डायरेक्टली इंटीग्रेबल है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट लॉग एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू लॉग वाई माइनस जेड प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन लॉग ए, लॉग को ट्रांसफर कर लो, लॉग ए माइनस लॉग बी आपका हो जाएगा लॉग ए अपॉन बी, लॉग से लॉग कैंसिल तो आपका फर्स्ट इंडिपेंडेंट पार्ट आ गया एक्स माइनस वाई अपॉन वाई माइनस जेड इक्वल्स टू ए, दिस ओवर फर्स्ट पार्ट। नाउ फॉर सेकेंड कॉम्बिनेशन, यहाँ से अपन को नेक्स्ट कॉम्बिनेशन अरेंज करना है। नाउ
अगर तीनों को ऐड करते हैं डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड, तो आपका आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। एक कॉम्बिनेशन ये बन रहा है। और ये जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है, ये फॉर्मूला आता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 XY जेड का पार्ट होता है। ठीक है, जब तीनों को ऐड करते हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स आता है। ये फैक्टर किसका पार्ट होता है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 XY जेड का। इसलिए फर्स्ट को उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला अरेंज करने के लिए नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ले लेते हैं एक्स वाई और जेड का मल्टीपल। तो ये आपका एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 XY जेड अरेंज हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों कॉम्बिनेशन अरेंज किया। फर्स्ट तो दोनों को ऐड कर दिया डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड और देन एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड। ना एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 XY जेड फॉर्मूले को ओपन करेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। ये दोनों फैक्टर कॉमन आ रहे हैं, कैंसिल आउट हो गए। नाउ एक्स प्लस वाई प्लस जेड डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड इक्वल्स टू एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड। इसका डिफरेंस है आपके साथ। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बाई टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वाई स्क्वायर बाई टू प्लस जेड स्क्वायर बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट बी। ना उसे सिंप्लीफाई करोगे ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वाई स्क्वायर बाई टू प्लस जेड स्क्वायर बाई टू कैंसिल आउट हो जाएगा। रिमेनिंग आपका बचेगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल्स टू बी। ये सेकंड पार्ट हो गया सॉल्यूशन का। हैंस द जनरल सॉल्यूशन इज एफ यू कॉमा वी इक्वल्स टू 0। दिस इज आवर जनरल सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 6। Solve p cos x plus y plus q sin x plus y equals to z. Again, this is Lagrange's linear differential equation. Now its auxiliary equation is dx by p equals to dy by q equals to dz by r. p, q और r की वैल्यू पुट कर दो cos x plus y sin x plus y और r आपका हो जाएगा z। ना क्वेश्चन को देखते ही एक तो क्लियर है कि जो cos x plus y और sin x plus y हैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन dx और dy के रेस्पेक्ट में नहीं हो सकते। यहाँ हमको dx प्लस dy का कॉम्बिनेशन अरेंज ही करना पड़ेगा। तो फर्स्ट dx प्लस dy का कॉम्बिनेशन ले लिया ना। cos x प्लस sin y का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है sin x प्लस y माइनस cos x प्लस y। तो दोनों का डिफरेंशिएशन भी ले लिया dx माइनस dy। ना थर्ड और फोर्थ कॉम्बिनेशन को फर्स्ट साथ में लिया। इसे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनाने के लिए साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी की फॉर्म चाहिए, इसलिए √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड। 1/√2 की वैल्यू पुट कर देंगे साइन पाई बाई 4 और यहाँ 1/√2 की वैल्यू पुट करेंगे कॉस पाई बाई 4। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, दिस इज साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी एक्स प्लस वाई प्लस पाई बाई 4। क्लियर? 1/√2 आपका साइन पाई बाई 4 की वैल्यू हो जाएगी और ये 1/√2 कॉस पाई बाई 4 और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे ना। इस साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक, और कॉसेक का इंटीग्रेशन क्या होता है? 10x/2 log 10x/2 और डायरेक्टली इंटीग्रेबल भी है क्योंकि x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन dx प्लस dy आपके साथ है। ना इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कॉसेक का इंटीग्रेशन हो गया log 10x/2 प्लस √2 1/z का log z प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन log a। log की प्रॉपर्टी से log a z√2 log से log कैंसिल आउट हो जाएगा। तो z√2 10 से डिवाइड करेंगे cot x प्लस वाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8 इक्वल्स टू 1/a। इसे न्यू कॉन्स्टेंट a1 ले लिया। दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट। नाउ नेक्स्ट फोर्थ और फिफ्थ को कॉम्बिनेशन ले लेते हैं जो अपने dx प्लस dy और dx माइनस dy का कॉम्बिनेशन लिया था। नाउ साइन x प्लस वाई प्लस कॉस x प्लस वाई को अगर टी मानते हैं तो आपका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? साइन का डिफरेंशिएशन cos x प्लस वाई और cos का माइनस साइन x प्लस वाई। तो इस पार्ट का डिफरेंशिएशन ये आ रहा है, यानी इसको टी मानेंगे तो dt आपका ये बन सकता है। तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना, जैसे साइन x प्लस वाई प्लस कॉस x प्लस वाई को टी मानोगे तो आपका dt आ जाएगा ये पार्ट पूरा। dt बाई टी का इंटीग्रेशन log t प्लस कॉन्स्टेंट log b x dx माइनस dy का इंटीग्रेशन हो गया x माइनस वाई। ना उसे log से सिंप्लीफाई कर लेंगे, log को ट्रांसफर करेंगे तो log किस में चेंज हो? एक्सपोनेंशियल x माइनस बी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू बी साइन एक्स प्लस वाई प्लस बी कॉस एक्स प्लस वाई। वी कैन अरेंज दिस ई रेस पावर एक्स माइनस वाई से डिवाइड करेंगे तो ई रेस पावर वाई माइनस एक्स न्यूमरेटर में आ जाएगा। साइन एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1/b। इस न्यू कॉन्स्टेंट b1 ले लिया। हैंस द जनरल इंटीग्रल इज एफ यू कॉमा वी इक्वल्स टू 0। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। y माइनस जेड एक्स पी प्लस एक्स प्लस
वाई जेड क्यू इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी आपका क्या है, लैग्रांज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। नाउ उससे ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी डी एक्स बाई पी इक्वल्स टू डी वाई बाई क्यू इक्वल्स टू डी जेड बाई आर। वैल्यूज पुट कर दो पी क्यू और आर की, डी एक्स बाई पी प्लस डी वाई बाई क्यू इक्वल्स टू डी जेड बाई आर। नाउ यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है, अगर मैं इसको y से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वाई स्क्वायर बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर मिल जाएगा और जो माइनस डी जेड से कैंसिल आउट हो जाए, तो इसको y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड कैंसिल आउट हो गया, रिमेनिंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको माइनस करने के लिए माइनस डी जेड कर दिया, न्यूमरेटर पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई माइनस डी जेड इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। ये यू इंटू वी के फॉर्मूले से डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई हो गया माइनस डी जेड। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल, तो एक्स वाई बच रहा है माइनस डी जेड का इंटीग्रेशन जेड प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन ई। दिस इज फर्स्ट इंडिपेंडेंट पार्ट। सेकंड, अगेन कॉम्बिनेशन आपको अरेंज करना है, तो यहाँ एक्स वाई और जेड से मल्टीप्लाई, जब एक्स से मल्टीप्लाई करो तो ये आपका एक्स वाई माइनस जेड एक्स स्क्वायर बन रहा है। तो एक्स वाई को कैंसिल करने के लिए यहाँ पे आपको क्या चाहिए, माइनस एक्स वाई, तो यहाँ माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल और ये आपका माइनस वाई स्क्वायर जेड हो गया, तो माइनस जेड कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए इसको माइनस जेड से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस जेड से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका कॉम्बिनेशन बन गया एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड अपॉन, नाउ न्यूमरेटर पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस वाई स्क्वायर बाई टू प्लस जेड स्क्वायर बाई टू इक्वल टू बी बाई टू, तो आपका सोल्यूशन आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू बी। हैंस द जनरल इंटीग्रल इज एफ यू कॉमा वी इक्वल टू जीरो। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक, ये आपके न्यूमेरिकल थे लैग्रांज के। तो लैग्रांज डिफरेंशियल इक्वेशन जब आएगी पार्शियल वाली, उस केस में आपको हमेशा कॉम्बिनेशन अरेंज करना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट कॉम्बिनेशन है तो आपको टू इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन वहाँ से निकाल दें, अगर डायरेक्ट नहीं मिल रहा है तो आपको किसी भी तरह से मल्टीप्लायर, इस तरह से मल्टीप्लायर सेलेक्ट करने हैं कि जो भी आप कॉम्बिनेशन अरेंज कर रहे हो उसका डिफरेंशिएशन साथ में हो, तभी आप यहाँ डायरेक्टली इंटीग्रेबल कर सकते हो। थैंक यू।